हेलो एवरीवन। सो आज हम जिसके रिगार्डिंग बात करेंगे वो है करियर एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर करेंटली डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो पहली बात मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा। फर्स्टली दोज students who are studying in tier 1 colleges like the top 7 IITs or top triple IITs. So firstly, congrats, you've already done a good work. You're in a good college. Now what you have to do is focus on your academics and CGPA. Try to maintain a good CGPA, and along with it, like focus on your skill development, like learn the required skills that is needed in today's age, like web development or AI or data science. So if these two things you do, then like prepare whatever is needed for your placements. Yeah, you can get the good opportunities. You can get good roles and you can land good packages as well. So that is the thing for you. And for those students, many of you जो higher studies में भी interested होंगे, they can, you know, they should try to do research during their BTech, and they should give the exams like GRE and TOEFL, then apply abroad. Then maybe hopefully they can get to do masters abroad as well. So these are for these students. Now I'll talk about the tier 2 students. So two students, those who are studying in colleges like NITs and some other good colleges or state universities. So what you can do is like, okay, you are also in a good college, you can also get good opportunities, but yes, you have to focus on your academics and try to maintain a high CGPA and try to be in the top 10 or 15 students in your class. Then if you do that, then if you might be uh, getting good opportunities, when any good company or good roles will come to your college campus, you might get shortlisted for that. And after that, उसके बाद तो आपके like टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स के पे डिपेंड करता है, वो कितना अच्छा है आपका और इंटरव्यू आप कितना अच्छा देते हो। देन मे बी यू कैन क्रैक दोज जॉब्स एंड यू कैन गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप जो है, आप भी अगर आपका स्किल्स अच्छा हो, टेक्निकल स्किल्स अच्छा हो, आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छा हो, यू कैन ऑल्सो गेट गुड जॉब्स, यू कैन गेट मिड लेवल जॉब्स एज वेल, लाइक 8 LPA, 9 LPA. Then later on, like you can switch after 1 or 2 years and the package will increase. And the top students, you can get more than 10 LPA or if possible, even more than 15 LPA also. So this is for the tier 2 students, right? And yeah, you can also opt, if you want, you can opt for higher studies. So you should also try to do research during your BTech and then give the exams like GRE and TOEFL and then apply abroad. So this is for the tier 2 students. अब जो है मैं बात करूंगा टियर 3 स्टूडेंट्स के बारे में, लाइक दोज हु आर स्टडिंग इन प्राइवेट कॉलेजेस और सम अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो लाइक आपके लिए भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, और you yeah, so you have to follow a certain path. So this is for those students, and like tier 2 students can also listen, and in general this is for any student who are doing BTech in computer science or IT. सो पहला चीज मैं जो बोलूंगा वो ये है कि फोकस ऑन योर स्टडीज एंड एकेडमिक्स एज वेल एज योर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें चलना चाहिए साइड बाय साइड, और इन दोनों चीजों को आगे लेके जाना। ठीक है। सो यू नो स्किल डेवलपमेंट में यू नीड टू हैव द स्किल्स, लाइक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जनरली जो करते हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, यू कैन डू देम। बट आज के टाइम पे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एआई का टाइम आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो कोड जनरेशन हो रहा है, तो लार्ज, तो एआई स्किल्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दोज स्किल्स यू शुड लर्न इन स्किल डेवलपमेंट। बट यस, एट द सेम टाइम्स आपको आपके एकेडमिक्स पे भी और सीजीपीए पे भी फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके आगे लेके जाना। ऐसा नहीं कि आप स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस किए और यहाँ एकेडमिक्स खराब हो गया, लाइक 7 CGPA से कम चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। You should always try to keep your CGPA, uh, if good, always try to keep it above 8.5, but above 8 always try to keep, but at least 7.5 से ऊपर होना चाहिए।
So that is the thing. uh, why good academics is important, because अगर सीजीपी अच्छा रहे और आपके कॉलेज में कोई ये अच्छे रोल्स आए, यू माइट गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इट। अब इसके बाद जो है आपके टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स पे डिपेंड करता है, और आप इंटरव्यू कितना अच्छा देते हो, देन यू कैन गेट दोज काइंड ऑफ good roles. So a good academic record is important, because तब क्या होगा, the good opportunities will come to you, and there's a high possibility that you can get also those opportunities. Okay, so ये so that's why this CGPA is important, because it is a stamp. Like with BTech, only the stamp of CGPA will be with you, how much you have got. So that is why you should try to maintain a good CGPA. Okay. सो अबाउट स्किल डेवलपमेंट आई वाज टॉकिंग। सो स्किल डेवलपमेंट में देखो, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस या एआई। तो अब एक चीज मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जनरली जो करना चाहते हैं कि कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट हो या बैकएंड डेवलपमेंट हो। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज लाइक एक वेबसाइट या ऐप बनाता है, तो एक प्रोडक्ट वो बनाते हैं और उसका जो आउटपुट है वो दिखता है। So it like makes them feel good that I have totally made this thing and the output is in front of me. So they feel right about it. वो कुछ ज्यादा मतलब डेटा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या एनालिटिक्स की तरफ। सो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट है कि कुछ बिल्ड करना है, देन यू कैन डू वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। बट आज के टाइम पे क्या है कि एआई का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, आप जान ही रहे होंगे। कोड जनरेशन हो रहा है, एलएलएम आ रहा है। तो you should definitely have the skill of AI as well. Okay, तो AI के भी आपको कोर्सेज करने चाहिए। AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसके कोर्सेज आपको करने चाहिए। आप कुछ भी सीखे, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और डेटा साइंस, बस उसके साथ साथ AI का कोर्स आपको करना चाहिए, और AI से स्किल्स भी आपको रहना चाहिए साथ में, क्योंकि इन फ्यूचर इट विल बी गुड फॉर यू। ओके। So that is the important thing, because cutting edge technologies and futuristic technologies is important. This is very important for your future. Now I'll talk about data science. तो अब क्या है कि some students might be confused कि यार मैं वेब डेव करूं या डेटा साइंस करूं। तो पहला चीज मैं बोलूंगा कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स, लाइक डू यू लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या आपको स्टैटिस्टिक्स के जो कंसेप्ट्स है, लाइक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स पढ़ना अच्छे लगते हैं? सो इफ यू लाइक, या आपको डेटा लेकर काम करना अच्छा लगता है, लाइक यू हैव अ बिजनेस डेटा, you like to generate some insights from it, some actionable insights, तो आपको डेटा को लेकर काम करना अच्छा लगता है, स्टेटिस्टिक्स अच्छा लगता है, देन अगर आपको अच्छा लगता है, यू कैन डेफिनेटली परस्यू डेटा साइंस, बिकॉज डेटा साइंस का भी स्कोप जो है बहुत बढ़ रहा है आगे, बिकॉज डे बाय डे द अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अभी ऑलरेडी बहुत डेटा साइंस का काम हो रहा है, और आगे भी डेटा साइंस के बहुत रोल्स आने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू लाइक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, you like to study it, then you cannot dislike data science. Okay, so that is the thing. If you have interest in it, you should definitely, you can learn data science, because it will be really good for you. And again, if you have the data science skills, तब आपको रिसर्च में या कोई रिसर्च इंटर्नशिप के पोजीशन में पाने में भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा डेफिनेटली। सो या इफ यू हैव इंटरेस्ट, यू कैन लर्न डेटा साइंस एज वेल। बट यस, आई एम ऑलवेज टेलिंग दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे सीखना जरूरी है, जिसमें एआई है। एआई का एक कोर्स जरूर कर लेना, या आप कंप्यूटर विजन कर सकते हो या आईओटी कर सकते हो। ओके, नाउ दोज गाइज लाइक who have a lot of interest in data, you can do data engineering as well। ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग में क्या है, अ, जो कि जनरली होता है अपाचे स्पार्क, पाइस्पार्क, फिर एसक्यूएल, ये सब चीजें, डेटा पाइपलाइनिंग, डेटा इंजीनियरिंग के कोर्स है, ये भी कर सकते हो इफ यू आर इनटू डेटा। सो दैट इज द थिंग। बट अगर हम कोर पे आए एंड यू आर लाइक, यू लाइक बिल्डिंग समथिंग, देन इट्स ओके, यू कैन डू वेब डेवलपमेंट, एंड देर आर डिफरेंट स्टैक्स फॉर इट।
जैसे कि तो कोई एक स्टैक चूज करके कर लेना, ठीक है, जेंगो और जावा स्प्रिंग बूट। सो यही है मेन चीज बीटेक के टाइम पे ध्यान रखना कि एकेडमिक्स भी चलना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट भी चलना चाहिए, ओके, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड फॉर गेटिंग जॉब, ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब जो है मैं बोलूंगा कि या focus on the core concepts whenever you're learning something like you're learning any BTech subject like operating system or DVMS or computer networks or theory of computation, उसके जो concepts है उस पे focus कीजिए, और अच्छे से concepts अगर grasp करेंगे then it will be good for you in job interview preparation also, or if someone is preparing for GATE also, then also it will be useful for them, okay. Now, okay, again, try to get summer internships. Okay, so at the third year, at the end of third year, between the gap of third and fourth year, you should definitely try to get a summer internship. And if you get it, it will be really beneficial for your profile. तो जहाँ भी जो भी openings निकलते हैं NITs में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लाइक NITs में, IITs में, तो समर इंटर्नशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना, या अगर कोई कंपनी भी आती है आपके कैंपस में इंटर्नशिप देने के लिए, वहाँ भी कोशिश करना कि एक इंटर्नशिप मिले, बिकॉज इट विल बी रियली गुड फॉर यू, ओके, सो दैट्स इट। ओके, अब मैं बात करना चाहूंगा फॉर दोज पीपल जो गेट हायर स्टडी करना चाहते हैं, ओके। फर्स्टली अगर आपको लगता है कि यू आर रियली गुड एट लर्निंग द कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट्स इन योर बीटेक एंड यू आर गुड एट लर्निंग देम, और गेट का जो एग्जाम है, जो फॉर्मेट है, यू आर लाइक यू बी एबल टू गेट प्रिपेयर फॉर गेट एंड लाइक गेट गुड मार्क्स और गुड रैंक्स, देन यू शुड, आई वुड से कि यार पहले से ही कॉलेज के टाइम से ही, मतलब सेकेंड ईयर से ही गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है, बिकॉज यू नो इट इज हाईली कम्पिटेटिव एग्जाम और सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अगर सेकेंड ईयर से प्रिपेयर करना शुरू करोगे देन यू विल हैव अ क्वाइट लॉन्गर टाइम, 3 साल मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। So by the time you will be in your third or fourth year, you'll be prepared well for it. And like if you rank really well in GATE, like within 500, then you can get MTech in good colleges, like in the top IITs. And after that, you can get good jobs also, and you have a scope of doing higher studies also. Okay, so if possible, अगर आपका गेट एम है तो कॉलेज के टाइम से सेकंड ईयर से ही शुरू कर दीजिए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम। इफ पॉसिबल फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा कुछ करते नहीं है स्टूडेंट्स, वो सेकंड ईयर से ही सीरियस होते हैं। तो यही है बात, कॉलेज के टाइम से ही गेट का प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन अ गुड ऑनलाइन कोचिंग, इफ पॉसिबल, इफ ऑफलाइन इज पॉसिबल देन यू कैन, बट आज के टाइम ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो join a good online coaching and prepare for GATE if you think you are really good at you know कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, बिकॉज गेट से भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, एंड इफ यू डू एमटेक फ्रॉम अ गुड आईआईटी तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं, ओके, ये गेट हुआ। अब है रिगार्डिंग द एमबीए गाइस, ओके, तो जो दो स्टूडेंट्स जो मतलब एमबीए में इंटरेस्टेड है, जो लाइक फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं और मैनेजरियल रोल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, ओके, जस्ट 1 मिनट। So for the MBA guys, those who wish to study in top B schools or top IIMs or any good IIM, मैं कहूँगा यार बीटेक के टाइम से ही कैट का प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है, आइदर फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और कैट के जो 3 सेक्शंस है, क्वांट्स, DILR और VARC, prepare preparing for them from college itself, क्योंकि अगेन सेम चीज, कॉलेज में 4 साल इट्स अ बिग टाइम, अगर तुम सेकंड ईयर से भी शुरू करो, 3 साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, you'll get a lot of time and you will practice a lot, and by the time you will be at the end of your BTech, you will get really better at this thing, and you should also identify which things you are good at, and according to it you should make your exam strategy also, okay। So अगर तुम बीटेक के टाइम से क्वांट्स रीजनिंग DI और VARC ये अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, देन you'll be like practicing vast of those questions, and you'll be by the time at the end of your BTech you'll be really means good at this thing, so it will really give you a like edge
in your CAT performance. Okay, so that is the thing. If you're aiming for top IIMs or any IIM, then of course CAT you should focus on, or even MBA from good IITs. CAT you should focus on, but of course उसके साथ साथ जो बाकी एग्जाम्स है वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि जैट, स्नैप, एनमैट, ये भी आप जरूर देना. बट यस, लाइक अगर आप डिटरमाइंड हो कि आप एमबीए करोगे और मैनेजरियल रोल्स में जाओगे, फ्यूचर में लीडरशिप रोल्स में जाओगे, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. ओके, अलोंग विद इट क्या है कि यू शुड लाइक इन कॉलेज always try to be part of a committee and try to take up positions of responsibilities. ठीक है, तो कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तुम्हारे कॉलेज में, वो जरूर परफॉर्म करना और वो रोल जरूर एक्सेप्ट करना. और एंड लाइक इफ देर इज फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, तो तुम्हारे उस इवेंट के फाइनेंस टीम में या मार्केटिंग टीम में जरूर शामिल होना, या फिर कोर ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी जाने की कोशिश करना. सो इट विल बी रियली गुड फॉर यू, बिकॉज it will be really good for your profile, and for your MBA profile it will be good. And like कोई भी कमिटी हो, स्टूडेंट्स कमिटी और एनीथिंग, hostel committee, you should try to take up positions of responsibilities. It will be really good for your profile and your MBA profile. Okay, and along with it, try to do extracurricular activities as well. Okay, अगर आपको लगता है that you are really good at one sports, then you should try to excel in it, and if possible try your best to win in that sports in your college. And if possible, like if you're able to take part in any inter college tournaments and you are able, if you think you can win, you should do your best to win it, because extracurriculars भी बहुत आपको आपकी प्रोफाइल बूस्ट करेंगी फॉर एमबीए. ओके, ये हुआ. You should always try to do these things. And along with it, ओके, फर्स्टली आपका 10th और 12th में मार्क्स कैसा है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. अगर अगर आप 10th में 90% के ऊपर है और 12th में 85% के ऊपर है, देन इट्स रियली गुड. बट अगर नहीं भी है, कोई बात नहीं. यू शुड फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द थिंग्स कि आप जो आप कर सकते हो. सो या यूजी में, बीटेक में भी एकेडमिक्स पे फोकस कीजिए एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड सीजीपीए. ओके, सो दीज आर फॉर द एमबीए गाइस. ओके. Okay, so now I will talk about, yeah, गवर्नमेंट जॉब्स. ओके, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक यार जो कोर इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जैसे कि सिविल या इलेक्ट्रिकल और इवन केमिकल या माइनिंग, वो तो बोलते हैं यार इन लोगों के लिए तो पीएसयू है यार. इन लोगों को गेट के थ्रू पीएसयू मिल जाएगा. कितने सारे पीएसयूज है, लाइक ओएनजीसी, आईओसीएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड फॉर माइनिंग एंड केमिकल गाइज. सो ये सीएस गाइज, लाइक दे माइट आस्क कि यार कोर इंजीनियरिंग वालों के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है गवर्नमेंट जॉब्स. सो आर देयर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स? यस देयर आर, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर्स. ठीक है, दे आर लिमिटेड इन नंबर्स, बट है जॉब्स. अब जो फुल्ली गवर्नमेंट जॉब्स है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा कम है, बट पब्लिक सेक्टर में काफी सारे जॉब्स हैं. तो फर्स्टली आई टॉक अबाउट फुल्ली गवर्नमेंट जॉब्स. सो एनआईसी जो है, कभी कभी इसके वैकेंसीज आते हैं. ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो ये बहुत अच्छा पोस्ट देती है. आई थिंक साइंटिस्ट बी जो है, ये एक ग्रुप ए पोस्ट है, एंड द compensation इज also गुड. एंड so this is a fully government job that you can definitely focus as a computer science student. So for those students who are really good at computer science concepts and good at the solving the, and those who are preparing gate, अगर आप गेट के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, आप अगर आपका कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम ऑफ एनआईसी व्हेन द वैकेंसीज विल कम आउट. ओके, बट एक ही इशू है कि इसके इतने ज्यादा ओपनिंग्स नहीं आते हैं. कभी कभी ट्रिपल डिजिट आ जाता है, बट मेनली डबल डिजिट में आता है. और लाइक इसके रेगुलरली ओपनिंग्स नहीं आता है, रेयरली आता है 2-3 साल में एक बार. सो दैट इज वन ऑफ द इशू. अनदर फुल्ली गवर्नमेंट जॉब इज नीलिट. ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये भी एक अच्छा पोस्ट प्रोवाइड करता है साइंटिफिक असिस्टेंट का.
बट अगेन इसके भी पोस्ट कम है और कभी कभी रेयरली ओपनिंग्स आता है, तो इसका भी अगर ओपनिंग्स आए तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं. सो दोज हु आर गुड विद कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स दे कैन डेफिनेटली गिव दीज एग्जाम्स. ओके. नाउ पब्लिक सेक्टर जॉब्स, एक जो रास्ता है वो है गेट के थ्रू. गेट में अगर कोई बहुत अच्छा रैंक करे 150 के अंदर, फिर अगर वो जो कंप्यूटर इंजीनियर स्पेशलिस्ट या सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट के ओपनिंग्स आता है पीएसयू में, जैसे कि ओएनजीसी में आता है, आई थिंक आईओसीएल में भी आता है. तो अगर इफ यू स्कोर like if you get exceptionally good rank in gate within 150, then those kind of roles you might get an interview call for that. बट हाँ, ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में जो काफी सारे ओपनिंग्स आते हैं, एटलीस्ट ट्रिपल डिजिट में तो आते ही हैं, वो है आईटी ऑफिसर. ठीक है. बैंकिंग में आईटी ऑफिसर के काफी पोस्ट आते हैं. सो इसके लिए जो एग्जाम आपको देना है वो है आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर. ठीक है. सो वेन एवर दिस एग्जाम कम्स आउट, ओके, while pursuing the degree you are not eligible for it, but after you have completed your degree you are eligible for this exam. Okay. तो ये एग्जाम जब आता है देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट. और इसमें प्री होगा और मेंस होगा. प्री में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जो मेंस होगा उसमें अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो उसके बाद अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है यहाँ में कहीं भी आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज है तो आपको, और आपका कट ऑफ क्लियर है मेंस में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है एंड यू कैन गेट दोज जॉब्स. सो आईटी ऑफिसर जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दीज आर गुड जॉब्स. कंपनसेशन अच्छा है and I think this can be good job for the computer science guys. So yeah, definitely you should. And for this also, अगर ये एम आप रखना चाहते हो तो इसके लिए भी कॉलेज के टाइम से ही प्रिपेयर कर दो, प्रिपेयर करना शुरू कर दो. इसके लिए भी आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करना है. अलोंग विद दैट कंप्यूटर नॉलेज तो आपके बीटेक के सिलेबस से भी आ जाएगा और आप अलग से भी प्रिपेयर कर सकते हो. सो यस, यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स. और एसबीआई का जो आईटी ऑफिसर है, एसबीआई एसओ आईटी ऑफिसर, एसबीआई का अलग से कंडक्ट होता है. एसबीआई का आईटी ऑफिसर भी बहुत अच्छा पोस्ट है. सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इट. सो फॉर दीज एग्जाम्स आई वुड से प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वेल फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलेज ऑन. सो दीज आर फॉर इन द बैंकिंग सेक्टर. काफी सारे ओपनिंग्स निकलते हैं ट्रिपल डिजिट में. ओके. और along with it जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स जो एग्जाम देते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, ये आप दे सकते हो इफ यू आर गुड एट. बट इसमें या यू हैव टू बी, it's very time management is the main thing. You have to do a lot of questions within less time. So if you're good at English, reasoning and maths, और इसमें general awareness भी आता है, तो एसएससी सीजीएल यू कैन डेफिनेटली गिव इट. ऑल द ग्रेजुएट्स गिव इट. बट या इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है. इट्स बेटर इफ वी फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस. सीजीएल यू कैन गिव एंड द अदर बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो आप दे सकते हो, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस क्लर्क. जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स देते हैं वो एग्जाम्स भी आप टारगेट कर सकते हो. इसीलिए मैं बोलूंगा कि कॉलेज के टाइम पे यार जब भी फ्री टाइम मिले ना, वीकेंड मिले, तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स जरूर प्रैक्टिस करना. ठीक है. तो ये क्योंकि ये बहुत काम आएगा. बिकॉज जॉब्स के एग्जाम क्या है, व्हेन यू आर डूइंग द डिग्री यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, बट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब एग्जाम्स. तो अगर आप कॉलेज के टाइम से ही प्रिपेयर करके रखो, द बाय द टाइम यू विल कंप्लीट योर बीटेक यू विल बी टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक क्रैक दिस एग्जाम्स इन अ क्वाइट, आई होप, होपफुली क्वाइट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. ओके. तो लाइक बीटेक के 1-2 साल के अंदर ही आप क्रैक कर दोगे एंड दैट विल बी अ गुड थिंग. ओके. सो दैट इज व्हाई I would like to suggest that you should practice these things. It will be helpful for your career if you want to get these kind of jobs. Okay. So that is the thing. So this was all about it, discussion about BTech in computer science. So if you like this content, then please do like, and also please subscribe to my channel. And I will like to I will try to bring more content regarding career and other stuff. So that's it. Thank you very much for watching. Thank you.